Good evening, all of you. Today, we are learning about some theoretical concept of VB.NET. Myself, Abhijit Singh Jadeja, lecturer BPCCS, KSV University, Gandhinagar. Let me start. VB.NET, when we discuss about it, there are so many variables are there, and in any programming language, variables are there, data types are there. If we discuss about customized data types, the array, it is one of the very useful data type of it. As we learn in C language and any another programming language, array is a collection of various value having same data type. In VB.NET, here we discuss about standard array. It is mentioned some example, dim a of 5 as integer means a variable having 5 memory cell, we can store 5 various type of integer value in it. Dim b as double, but the memory cell or array index is not mentioned. Then after dim matrix 3 by 3, it is as integer, and dim s name, student name of 10 as string. Then after the second point, we are discussing about dynamic array. We can declare dynamic array in VB.NET by using redimension. Redimension is mentioned as a keyword of redim. Redim we are using like in example dim s name of 3 equal to BCA. इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट नेम में तीसरी इंडेक्स पे BCA नाम स्टोर किया है, और हमारे पास डिक्लेरेशन के टाइम पे आपने ऊपर देखा है यहाँ पे स्टूडेंट नेम है वो 10. नाउ रीडीम एस नेम 100 मीन्स स्टूडेंट नेम की इंडेक्स वैल्यू जो 3 थी उसकी जगह पे 100 की गई, और 100 के बाद यहाँ पे 50 नंबर के इंडेक्स पे MCA को स्टोर करवाया गया. सो फॉर डिक्लेयरिंग एरे एंड dynamic array, it is very easy. We can use redeem as a keyword and we can increase the size of an array. Friends, it is a very important concept of VB.NET. It is subroutine versus function. In a programming language, what is subroutine and what is function? We are taking one by one. Subroutine always start with sub and end sub. Function declaration always with function and end function. Subroutine never return any value. Means कोई भी प्रोसेस होने के बाद वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, वो एंड सब के बाद एक्सटेंशन नहीं लेता है, बट इट कैन रिटर्न वैल्यू एज पर रिक्वायरमेंट. सब रूटीन इट डज नॉट हैव एनी टाइप्स और सब टाइप्स फॉर द प्रोसेस. उसके कोई भी टाइप्स और सब टाइप्स नहीं है. बट हम यदि फंक्शन की बात करें तो उसके मेन दो फंक्शंस हैं. लाइब्रेरी फंक्शन ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैक्स मीन सब स्ट्रिंग डॉट 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 etc मीन्स VB.NET की बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइब्रेरी है उसमें अलग अलग क्लासेस के जो भी फंक्शन है वो फंक्शन को आप लाइब्रेरी फंक्शन कह सकते हो. यूज़र डिफाइंड फंक्शन मीन्स यूज़र के द्वारा डिक्लेयर किया गया, उसके भी 4 सब टाइप हैं. जैसे हम लोग जानते हैं विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, with argument no return value, no argument with return value, and with argument with return value. We come to the next point, friends. VB.NET generally events are the example of subroutine only because it start with private sub button 1 underscore click dot 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 dot. जब भी VB.NET के अंदर हम कभी भी कोई भी इवेंट में जाते हैं, फिर वो फॉर्म लोड इवेंट हो, क्लिक इवेंट हो, डबल क्लिक इवेंट हो, माउस ओवर इवेंट हो, वो हमेशा प्राइवेट सब से स्टार्ट होती है. सामने देखें इन VB.NET एज पर रिक्वायरमेंट डेवलपर यूज लाइब्रेरी और यूजर डिफाइंड फंक्शन एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट. फाइनली एक एग्जांपल हमारे सामने है प्राइवेट सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक, मतलब के बटन के ऊपर क्लिक करने से हेलो HELLO हेलो नाम का सब रूटीन आया. एंड सब मीन्स के बटन की क्लिक इवेंट ओवर हो चुकी है. सब हेलो में मैसेज बॉक्स लिखा गया है यू आर वेलकम. एंड सब इट इज सब रूटीन बिकॉज हेलो जब एग्जीक्यूट हुआ तब आगे सब आया हुआ है. सामने एग्जांपल में देखें प्राइवेट सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक dim k एज इंटीजर इक्वल टू हेलो मीन्स हेलो नाम का UDF फंक्शन आएगा
और वो नीचे दिख रहा है फंक्शन हेलो, इट इज ऑन योर स्क्रीन. dim z as integer equal to 20 means we declare one variable that is z as integer. z की वैल्यू 20 हुई. रिटर्न z, जो वैल्यू रिटर्न करेगा, z वैल्यू रिटर्न करेगा, वो z वैल्यू है वो अभी k के अंदर आ जाएगी. मीन्स यहाँ पे आप दे सकते हैं कि नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू का हमने एक फंक्शन लिया हुआ है और एंड फंक्शन किया है. तो VB.NET एनवायरनमेंट में शायद आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि जो भी इवेंट्स हैं या हम लोग यूज़ करते हैं वो सब एक प्रकार की सब रूटीन है, क्योंकि वो स्कोप के साथ मेंशन होती है. प्राइवेट सब, बटन क्लिक, फॉर्म लोड, फॉर्म क्लोजिंग, key press, lost focus, got focus. There are so many events, but all that events are as a one type of subroutine. And function, we discussed already library function or something, a different function. Now we come to the next point, that is about the form. Form एक बहुत ही important part है VB.NET desktop application का. It is basic layout, ब्रैकेट में लिखा है class, for designing concepts of desktop application through VB.NET. In this form, we can put various type of objects, bracket में tool from toolbox, example text box, radio button, list view, label etc. to complete our application layout. Means यदि फॉर्म को हम क्लास गिनते हैं तो हमको जितने भी टूल रहे हैं उस टूल को हम ऑब्जेक्ट माने जाएंगे, तभी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है वो हकीकत में एग्जीक्यूट होगा. तो योर फॉर्म इज वर्क लाइक अ क्लास एंड योर ऑल टूल वर्क लाइक एन ऑब्जेक्ट. बाय डिफॉल्ट नेम form is form 1. You can add new forms by mouse right click and then add new item, select Windows form and that component dialog box. यहाँ पे आपको जो फिगर दिखाया जा रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोर में कैलकुलेटर करके एक प्रोजेक्ट है, उस पर राइट क्लिक करने से हम ऐड में आए और ऐड में न्यू आइटम करने से ये वाला स्क्रीनशॉट मिलेगा. न्यू आइटम में आप देख रहे हैं, ऐड न्यू आइटम में हमने विंडोज़ फॉर्म लिया है और उस फॉर्म का नाम भी आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है, form2.vb. और जब हम लोग ये ऐड पे क्लिक करेंगे एक नया फॉर्म हमारे कैलकुलेटर नाम के प्रोजेक्ट में ऐड होगा. नेक्स्ट स्लाइड हमारे लिए वो फॉर्म कंटिन्यू है. फॉर्म इज मेन डिजाइनिंग एलिमेंट ऑफ VB.NET where we can put various objects, and that is the reason when we show the code view of a form it writes public class form1, means rest of tools that you are using in this in using it is an object of form bracket में class and perform structural level inheritance in the code of VB.NET. VB.NET है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनाया गया रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट पैकेज है. इस पैराग्राफ में हमने ये समझने की कोशिश की कि फॉर्म है वो क्लास है, क्योंकि जब हम कोड व्यू में जाते हैं तब लिखा हुआ होता है सबसे टॉप में पब्लिक क्लास form1. ये पब्लिकली बिहेव करता है और जितने भी टूल्स आप इसमें लगाएंगे वो सब टूल्स एज अ ऑब्जेक्ट काम करेंगे. ऑब्जेक्ट की हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मेथड होती है. तो जो फॉर्म है उसकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है. यहाँ पे कुछ एक प्रॉपर्टीज़ दिखाई गई है. डॉट टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम लोग फॉर्म का टाइटल चेंज कर सकते हैं. ऑटो स्क्रॉल प्रॉपर्टी जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू फॉल्स में फॉल्स होती है, बट यदि हम ट्रू करते हैं तो फॉर्म के अंदर स्क्रॉल बार, यदि हमारा फॉर्म कोई इंक्वायरी फॉर्म या कोई बिलिंग का फॉर्म बहुत बड़ा हुआ तो उसमें स्क्रॉल बार अपने आप लग जाएगा. बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल का मतलब है आप फॉर्म की बॉर्डर कैसी रखना चाहते हैं. वेरियस टाइप ऑफ बॉर्डर्स आर देयर. चौथी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कंट्रोल बॉक्स प्रॉपर्टी. ये भी ट्रू फॉल्स होता है. कंट्रोल बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है, बट यदि कंट्रोल बॉक्स के टॉप में रहे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन को ऑफ करना चाहते हैं तो कंट्रोल बॉक्स को फॉल्स कर देंगे. तो आपके फॉर्म के राइट साइड टॉप पे रहे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे. मीन्स के आपके यूज़र को बाहर निकलने के लिए एग्जिट नाम का बटन यूज़ करना ही पड़ेगा. सो इट इज़ अ वेरी गुड प्रॉपर्टी फॉर्म कंट्रोल बॉक्स. फाइनली वी कम टू द विंडोज स्टेट. विंडोज स्टेट प्रॉपर्टी लास्ट में रहती है फॉर्म के अंदर और प्रॉपर्टी विंडो में,
पर इसका काम ये है कि जब हम प्रोग्राम को रन करें, फॉर्म को एग्जीक्यूट करें, तब वो किस पोजीशन में दिखे, नॉर्मल में, मिनिमाइज में या मैक्सिमाइज में। इट इज़ डिसाइडेड बाय दिस प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड विंडोज स्टेट। तो फ्रेंड, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि फॉर्म क्या है, VB.NET में एरे, डायनेमिक एरे क्या है, फॉर्म की कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। आगे बढ़ते हैं, यदि हम लोग टूल बॉक्स के ऊपर नज़र डालें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स जो है उसकी कंपैरिजन हम लोग आज इस विषय के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स एंड रिच टेक्स्ट बॉक्स, जैसे स्क्रीन के अंदर दिखता है, देयर आर सो मेनी वैरायटीज आर देयर। It works like a notepad of your Windows and it works like a wordpad of your Windows. Means यदि हम लोग नोटपैड खोलते हैं, हमारे स्टार्ट प्रोग्राम एसेसरीज में जाके नोटपैड खोलते हैं, तो जो सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर हमारे सामने आता है, जिसमें कलर फॉन्ट्स होना नामुमकिन, जिसमें कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट के फॉन्ट चेंज करना या उसको बोल्ड अंडरलाइन करना नामुमकिन, क्योंकि आप कोई नोटपैड में कोई डेटा या टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मॉडिफाइड करने जाएंगे तो पूरी टेक्स्ट मॉडिफाइड या सिलेक्शन को छोड़ के पूरी टेक्स्ट पे ये फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट होगा। बट इन रिच टेक्स्ट बॉक्स और वर्डपैड में ऐसा नहीं है। यदि डिफरेंस का दूसरा पहलू देखें तो ये है नो एडिशनल फॉर्मेटिंग अवेलेबल। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि फॉर्मेटिंग ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स में नहीं मिलता है, बट रिच टेक्स्ट बॉक्स में बुलेट्स लगा सकते हैं, फॉन्ट के कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट मल्टी लाइन प्रॉपर्टी इज फॉल्स, मीन्स के जब आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फॉर्म पे, तो उसके जो बॉर्डर्स पे डॉटेड मिलेंगे वो दो ही बॉर्डर डॉटेड मिलेंगे। यू कैन नॉट स्ट्रेच द प्रॉपर टेक्स्ट बॉक्स इन ऑल द डायमेंशन। मीन्स मल्टी लाइन प्रॉपर्टी है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहती है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मल्टी लाइन प्रॉपर्टी ट्रू होती है। बाय डिफॉल्ट मल्टी लाइन प्रॉपर्टी का यूज़ ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को स्ट्रेच करके मल्टी लाइन बना सकते हैं, बट टेक्स्ट बॉक्स में बाय डिफॉल्ट फॉल्स, रिच टेक्स्ट बॉक्स में ट्रू। स्क्रॉल बार देखा जाए तो स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी इज बाय डिफॉल्ट नन, मीन्स के टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्क्रॉल बार देखने को नहीं मिलता है एज अ नॉर्मल वे। स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी इज बाय डिफॉल्ट बोथ, मतलब कि जब भी हम लोग रिच टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स से बड़ा मिलेगा साइज में भी, और उसमें दोनों प्रकार के स्क्रॉल बार, मीन्स के हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार देखने को मिलेगा। कैरेक्टर कैसिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल, मीन्स if you want to show your input data as uppercase or lowercase, by character caching property you can implement into the text box. Character caching property is not available, means uppercase lowercase उतना important नहीं है। आप formatting option में जाके उसमें सब कुछ कर सकते हैं, बट स्पेशल प्रॉपर्टी जिसको बोला जाता है कैरेक्टर कैसिंग, वो रिच टेक्स्ट बॉक्स में नहीं है बट टेक्स्ट बॉक्स में है। It stores less number of characters, it display in max length property. फ्रेंड्स, यदि आप VB.NET के एनवायरनमेंट में जाके चेक करना चाहेंगे तो मैक्स लेंथ नाम की प्रॉपर्टी में जितने भी थाउजेंड्स या लैक्स के अंदर जो कैरेक्टर आएंगे वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं उसकी कैपेसिटी है। और यदि रिच टेक्स्ट बॉक्स की कैपेसिटी देखी जाए तो वो टेक्स्ट बॉक्स से बहुत ज़्यादा है। उसके लिए भी आप खुद अपने आप चेक कर सकते हैं। मैक्स लेंथ करके प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी विंडो में जाके यू कैन नोटिफाई, यू कैन वेरीफाई इट इज़ more than GB or 2 GB data we can store in rich text box. हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ेंगे आगे। नो सिलेक्शन मार्जिन प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। टेक्स्ट बॉक्स में फॉर्मेटिंग नहीं होता है तो इसमें सिलेक्शन मार्जिन करके एक प्रॉपर्टी है, वो टेक्स्ट बॉक्स में देखने को नहीं मिलेगी, बट फॉर रिच टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेटिंग पर्पज सिलेक्शन मार्जिन प्रॉपर्टी इज अवेलेबल। रिच टेक्स्ट बॉक्स में एडवांस फॉर्मेटिंग हो सकता है, इसलिए सिलेक्शन मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे देखी जाती है, पाई जाती है। ये भी आप अपने हिसाब से प्रॉपर्टी विंडो में चेक कर सकते हैं। टू सेट पासवर्ड फॉर एंट्री पासवर्ड केयर प्रॉपर्टी इज अवेलेबल। अगेन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक चीज़ है जो रिच टेक्स्ट बॉक्स में नहीं है, हमने अभी अभी डिस्कस किया, पासवर्ड केयर नाम की प्रॉपर्टी, जिसके द्वारा आप कुछ भी एंटर करेंगे या तो वो हैश या @ में दिखेगा ड्यू टू पासवर्ड केयर प्रॉपर्टी। रिच टेक्स्ट बॉक्स का मेन पर्पस फॉर्मेटिंग होने के लिए इसमें पासवर्ड केयर जैसी कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी अवेलेबल एंड बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज लेफ्ट, मीन्स whenever you start the data entry it is always from left and
प्रॉपर्टी विंडो में यदि आप नोट करेंगे तो टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में पाई जाएगी। टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी आपको रीच टेक्स्ट बॉक्स में नहीं देखने को मिलेगी, बट मेथड के द्वारा आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामिंग। वी कैन नॉट सेट इंडेक्स इन इंडेंट इन टेक्स्ट बॉक्स। इंडेंट मतलब टैब लगाना, टैब लगाना या इंडेंट नाम का प्रोसेस डालना टेक्स्ट बॉक्स में पॉसिबल नहीं है, जाकि रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंडेंट या टैबिंग हम लोग सेट कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज है मेथड्स। मेथड्स मतलब कि प्रॉपर्टी से थोड़ा आगे बढ़ते हुए ग्रुप ऑफ प्रोसीजर्स, जिसको हम लोग मेथड्स कहते हैं। सेव फाइल, अपेंड टेक्स्ट जैसी डायरेक्ट मेथड अवेलेबल नहीं है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रीच टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर ऐसी सेव फाइल एंड अपेंड टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। सो हम लोग डायलॉग बॉक्स का यूज कर सकते हैं सिर्फ रिच टेक्स्ट बॉक्स के साथ। नेक्स्ट है स्क्रॉल बार एंड ट्रैक बार। आई थिंक टेक्स्ट बॉक्स एंड रिच टेक्स्ट बॉक्स आपका क्लियर हो चुका है। स्क्रॉल बार और ट्रैक बार देखें। स्क्रॉल बार मूविंग स्मूथ, और इट यूज वैल्यू बेस्ड टेब्यूलर मूविंग, मतलब कि इसका जो ट्रैक बार का मूविंग है वो वैल्यू बेस्ड टेब्यूलर मूविंग होगा। टू इंडिविजुअल टूल, एच स्क्रॉल बार मीन्स हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वी स्क्रॉल बार मीन्स वर्टिकल स्क्रॉल बार। ओनली सिंगल टूल नेम ट्रैक बार। द लार्ज change property value is 10 by default, means दो मिनिमम और मैक्सिमम बीच के अंदर यदि हमको लार्ज चेंज करवाना है तो स्क्रॉल बार में बाय डिफॉल्ट वैल्यू 10 होती है, और लार्ज चेंज प्रॉपर्टी वैल्यू इज 5 बाय डिफॉल्ट इन ट्रैक बार। नो नीड ऑफ ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज इंडिविजुअल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यदि आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार चाहिए तो आप एच स्क्रॉल बार को उठा के अपनी फॉर्म में ले सकते हैं, और यदि आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार चाहिए तो आप बी स्क्रॉल बार को उठा सकते हैं। तो ओरिएंटेशन नाम की प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत स्क्रॉल बार को नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन नाम की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम लोग हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेट कर सकते हैं। नेवर यूज ट्रिक फ्रीक्वेंसी बिकॉज इट प्रोवाइड स्मूथ स्क्रॉलिंग। फ्रेंड्स, स्क्रॉल बार और ट्रैक बार दोनों में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है, बट टिक फ्रीक्वेंसी नाम की जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है वो स्क्रॉल बार में देखने को नहीं मिलती है, नहीं पाई जाती है, बट ट्रैक बार के अंदर आप मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी का गैप खड़ा करना चाहते हैं वो डिसाइड करने के लिए टिक फ्रीक्वेंसी होती है। यदि कोई डेवलपर ने 1 से 100 मिनिमम मैक्सिमम रखा है और टिक फ्रीक्वेंसी 10 रखी गई है, तो डायरेक्टली 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे देगा। और यदि किसी डेवलपर ने टिक फ्रीक्वेंसी 25 रखी है तो जो गैप होगा वो 25-25 के 4, मतलब कि 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 ऐसा मिलेगा। लास्ट पॉइंट ऑफ द स्क्रॉल बार एंड ट्रैक बार, मूविंग कर्सर शेप इज स्क्वायर और रेक्टेंगल। जिस कर्सर के द्वारा हम मूवमेंट करवाते हैं वो शेप है वो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल होता है। मूविंग कर्सर शेप इज पॉइंटर बेस्ड इन अ ट्रैक बार। So there is a very important and very cute differences scroll bar and track bar having 6 points. Next is tree view and list view. Before we go to the tree view and list view, let we assume you should press Windows E key. Again I repeat, Windows E key of your desktop application of Windows XP. What you found, friends? You found Windows Explorer. In Windows Explorer left side you have some hierarchy data like desktop, my documents, my computer. When you click on the plus sign of my computer, you will get C drive, D drive, E drive and F drive. When you go to the C drive and click on the plus point, then you can get the various folder that you manage in your PC. So what is this? This is a tree view, my friends. विंडोज एक्सप्लोरर की लेफ्ट साइड में जो आपको कंटेंट डॉटेड के साथ एक दूसरे से मिले हुए पाए जाते हैं वो ट्री व्यू का एग्जांपल है, जिसमें पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड और फोल्डर सब फोल्डर के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। लिस्ट व्यू मतलब कि विंडोज एक्सप्लोरर की राइट साइड पे जो आपके फोल्डर्स और सब फोल्डर्स दिखते हैं अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग लिस्ट में,
उसको हम लोग लिस्ट व्यू कहेंगे। सो एक लाइव एग्जांपल के बाद हम लोग थोड़ा टेक्निकल लेवल के पॉइंट्स को डिस्कस करें ताकि आप डिफरेंस को आराम से अच्छी तरह से समझ सके और उसको यूटिलाइज कर सके अपने प्रैक्टिकल स्किल में। इट रिप्रेजेंट नोड्स। ट्री व्यू में जो डेटा आइटम होती है उसको नोड्स कहा जाता है, लिस्ट व्यू में जो होता है उसको डेटा आइटम कहा जाता है। डिस्प्ले पैटर्न्स एज हायरार्चिकल स्टाइल मींस फादर चाइल्ड, ग्रैंडफादर, फादर चाइल्ड। इस पैटर्न के अंदर आपको जो भी डेटा मिलता है वो वहाँ पे मिलता है। डिस्प्ले पैटर्न इज वेरियस लिस्ट, डिटेल्स एंड लार्ज आइकन्स। मतलब कि हमको कोई डेटा या सब फोल्डर लार्ज आइकन में चाहिए या स्मॉल आइकन में चाहिए तो हम लोग इस तरह से यूटिलाइज करेंगे। ईच नोड मे बी पेरेंट्स और चाइल्ड बेस्ड स्ट्रक्चर। हर एक नोड है वो इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता है, इसमें पेरेंट या तो चाइल्ड स्ट्रक्चर में लेना चाहिए। ईच आइटम इज हैविंग इट्स ऑन पोजीशन लाइक 0 1 2 इंडेक्स। मतलब कि लिस्ट व्यू के अंदर आप हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो 0 इंडेक्स पे एक नाम, 1 इंडेक्स पे दूसरा नाम, तीसरी इंडेक्स पे तीसरा नाम और फिर नया लाइन। नोड्स आर हैविंग डिफॉल्ट आइकॉन डिस्प्ले फैसिलिटी। नोड्स के अंदर आप आइकन डिस्प्ले कर सकते हैं, फोल्डर का आइकन, ये वो सब। लिस्ट डेटा आइटम ऑल्सो एबल टू डिस्प्ले आइकॉन अलॉन्ग विथ इट। मीन्स इसमें आप अलग अलग आइकॉन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नो कॉलम्स प्रॉपर्टी अवेलेबल। मतलब कि यहाँ पे ट्री व्यू के अंदर हायरार्चिकल नोड स्ट्रक्चर होते हैं तो कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, और कॉलम्स प्रॉपर्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि आप जो भी फोल्डर देखेंगे, यदि आपने बहुत बार देखा होगा, आप अपने विंडोज़ एक्सप्लोर के अंदर डिटेल व्यू करते हैं तो आपको फोल्डर है, सब फोल्डर है, कितनी साइज़ पे है, कब बनाया गया है, कब मॉडिफाइड किया गया है, वो अलग अलग कॉलम में आपको डिटेल में देखने को मिलता है। We move to the next point, that is group nodes insertions possible by coding but not ready-made property। मतलब कि आपको एक से ज़्यादा नोड्स को एक साथ इंसर्ट करवाना है तो आप कोडिंग के अंदर बाय बटन की क्लिक इवेंट या फॉर्म की लोड इवेंट में करवा सकते हैं, बट कोई रेडीमेड प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। लिस्ट व्यू के अंदर ध्यान से देखें, टू इंसर्ट ग्रुप डेटा आइटम्स वी हैव अ ग्रुप प्रॉपर्टी अवेलेबल। मींस लिस्ट व्यू में ग्रुप्स करके एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा आप प्रॉपर्टी के माध्यम से ही बहुत सारी डेटा आइटम को एक साथ इंसर्ट करवा सकते हैं, आपको कोडिंग पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। We can insert image with node, so selected image index and selected image key property available। हम लोग हर एक नोड के साथ आइकन्स या तो इमेज को सेट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दो प्रॉपर्टी का डिस्कस किया गया, सिलेक्टेड इमेज इंडेक्स एंड सिलेक्टेड इमेज की। Image insertion is not possible with data item, so no selected image index and no selected image key property available। So friends, it's a very good difference between tree view and list view। I think uh, you can also derive this difference by example, as per I say that one Windows Explorer का लेफ्ट साइड का पार्ट ट्री व्यू है और राइट साइड का पार्ट लिस्ट व्यू है। आपको फॉर्म के अंदर लिस्ट व्यू और ट्री व्यू की डिज़ाइनिंग याद है तो आप अपनी शॉर्ट नोट में या अपने क्वेश्चन में या अपने ड्राफ्टिंग आंसर के अंदर उसके लेआउट या डिज़ाइनिंग भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज मेनू एंड कॉन्टेक्स्ट मेनू, अ वेरी क्यूट डिफरेंस। मेनू मीन्स बाय लेफ्ट क्लिक जो चले, माउस की लेफ्ट क्लिक के द्वारा जो एक्टिवेट हो और बहुत सारे फॉर्म को मैनेज करे वो मेनू होता है, और जो माउस की राइट क्लिक के साथ मैनेज हो और उसके अंदर कोई वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस या कमांड को ही एग्जीक्यूट किया जाए वो है कॉन्टेक्स्ट मेनू। मीन्स सिंपल भाषा में देखा जाए तो माउस की लेफ्ट क्लिक के द्वारा जो जनरली टॉप ऑफ द फॉर्म रहता है उसको हम लोग मेनू कहते हैं, मेनू आइटम्स कहेंगे। और कॉन्टेक्स्ट मेनू के अंदर आपने कोई टेक्स्ट डाला है टेक्स्ट बॉक्स में और उसकी सिलेक्शन के बाद आप उसको कट कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये जो राइट क्लिक करने के बाद छोटा सा पॉपअप मेनू खुलता है राइट क्लिक मेनू, उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट मेनू कहेंगे। मेन पर्पस इज टू मैनेज वेरियस टास्क ब्रैकेट में फॉर्म्स इन प्रॉपर टाइटल मेनू आइटम। हम लोग MS वर्ड से पढ़े आ रहे हैं, फाइल मेनू के अंदर न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू ये देखने को मिलता है। मीन्स फाइल इज अ टाइटल ऑफ अ मेनू, और फाइल मेनू के अंदर जो भी प्रोसेस है, नया नया डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट को सेव करना, सेव एज करना, प्रिंट प्रीव्यू करना, ये सब चीज़ मेनू और मेनू के प्रॉपर टाइटल के अंदर बहुत सारे फॉर्म को मैनेज करने की एक कला है। और मेन पर्पस इज टू परफॉर्म मेन टास्क लाइक कट कॉपी पेस्ट etc। टेक्स्ट बॉक्स में रही चीज़ को कट कॉपी पेस्ट करना है तो कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर ड्रॉ द आइटम्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। मेनू को डिज़ाइन करते समय यदि आप टेक्स्ट डायरेक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो वो आप मेनू को लेफ्ट साइड ले जाना चाहते हैं या राइट साइड ले जाना चाहते हैं, इसको हम टेक्स्ट डायरेक्शन कहते हैं। तो टेक्स्ट डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी है वो मेनू में अवेलेबल है। कॉन्टेक्स्ट मेनू में आप देख सकते हैं कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। show check margin show check margin such property is show check margin show image margin such property is not to show मीन्स मेनू के अंदर ऐसी मार्जिन प्रॉपर्टी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। मार्जिन और चेक मार्जिन जैसी चीज़। शो चेक मार्जिन, शो इमेज मार्जिन सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी वी कैन यूज इन अ कॉन्टेक्स्ट मेनू। मतलब कि जब हम लोग राइट क्लिक करते हैं तब हमको कितना मार्जिन देना है, जो भी कमांड्स खुले उसके अंदर कोई मार्जिन या स्पेसिफाइड स्पेस सेपरेट करना है तो शो चेक मार्जिन और इमेज मार्जिन दे सकते हैं। इट यूजेस कॉन्टेक्स्ट मेनू स्ट्रिप एज अ प्रॉपर्टी टू शो। मतलब कि मेनू के अंदर कॉन्टेक्स्ट मेनू आ सकता है बट कॉन्टेक्स्ट मेनू के अंदर मेनू नहीं आ सकता है। ये एक पावरफुल प्रॉपर्टी है जिसमें हमने ये देखा कि मेनू के अंदर कॉन्टेक्स्ट मेनू स्ट्रिप करके एक प्रॉपर्टी है। इट हैज़ नो सच अ प्रॉपर्टी ऑफ मेनू स्ट्रिप्स। बाय स्ट्रेच प्रॉपर्टी वी कैन कस्टमाइज द साइज ऑफ मेनू। मतलब कि स्ट्रेच प्रॉपर्टी के द्वारा हम मेनू का साइज पहले से तय कर सकते हैं कि इस मेनू में जो डेटा आइटम्स दिखनी चाहिए वो कितनी दिखनी चाहिए, 3, 4, 5, 8, 10 और 20। और स्ट्रेच नाम की प्रॉपर्टी कॉन्टेक्स्ट मेनू में नहीं होती है। यहाँ पे मेनू और कॉन्टेक्स्ट मेनू के 6 पॉइंट को टेक्निकली एज वेल एज एप्लीकेबल लेवल पे हमने डिस्कस किया। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, मेनू और कॉन्टेक्स्ट मेनू के बाद लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स। फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये जो है वो आपने बहुत बार देखा हुआ है, जो ड्रॉप डाउन से खुलता है उसको कॉम्बो बॉक्स कहते हैं, उसको ड्रॉप डाउन बॉक्स भी कहा जाता है। और इसमें बहुत सारी लिस्ट एक बार देखने को मिलती है, उसको लिस्ट बॉक्स कहा जाता है। इट रिक्वायर्ड मोर स्पेस फॉर डिज़ाइनिंग। जब आप इसको फॉर्म में डालेंगे तब वो फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा जगह रुकेगा। और कॉम्बो बॉक्स के लिए बोले तो इट रिक्वायर लेस स्पेस देन लिस्ट बॉक्स। We can set multiple columns it by multi column property। हम लोग एक से ज़्यादा कॉलम दे सकते हैं लिस्ट बॉक्स में। और by default it has only one column, no column property is available in a combo box। मीन्स के combo box में हम एक ही कॉलम ले सकते हैं और एक ही कॉलम रहती है, ताकि लिस्ट बॉक्स में एक से ज़्यादा कॉलम्स भी बनाई जा सकती है। मल्टीपल डेटा आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड बाय सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी। अगेन आई रिपीट, सिलेक्शन मोड नाम की एक प्रॉपर्टी जो लिस्ट बॉक्स में ही पाया जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन मोड सिंगल होता है बट आप उसको मल्टीपल करेंगे तो लिस्ट बॉक्स में एक से ज़्यादा डेटा आइटम को कंट्रोल की के माध्यम से उसको प्रेस करते हुए आप उसके अंदर बहुत सारी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल डेटा आइटम्स कैन नॉट सिलेक्टेड एंड नो स्पेशल प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर दिस टास्क। मतलब कि सिलेक्शन मोड जैसी प्रॉपर्टी लिस्ट बॉक्स में होती है बट कॉम्बो बॉक्स में नहीं पाई जाती है। एनी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग लेआउट बेस प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कि कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग लेवल की कोई जो प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ लिस्ट बॉक्स में देखने को नहीं मिलती है। बट ड्रॉप डाउन वेट, ड्रॉप डाउन विड्थ और ड्रॉप डाउन हाइट, अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग लेवल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपको कॉम्बो बॉक्स में मिलेगी, जो कि कॉम्बो बॉक्स को डिज़ाइन और उसके लेआउट फिक्स करने के लिए काम की चीज़ होती है। बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मेनी डेटा आइटम शुड शो नॉट स्पेसिफाई। मतलब कि लिस्ट बॉक्स में आप 12 डेटा आइटम भी डाल सकते हो
22 भी डाल सकते हो और 500 भी डाल सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉपर्टी का यूज नहीं है। बट यहाँ पे आप देखिए बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी डेटा आइटम शुड शो, it is mentioned by max drop down items. Again I repeat, max drop down items नाम की एक प्रॉपर्टी जो होती है वो कॉम्बो बॉक्स में पाई जाती है, जिससे आप ये तय कर पाते हो कि जब कॉम्बो बॉक्स खुलेगा तब उसके अंदर मैक्सिमम कितने सिटी के नेम, कितने कंट्री के नेम पाए जाए। आप उसमें 10 सेट करेंगे तो 10 आएंगे, उसके बाद स्क्रॉल के द्वारा आप अप डाउन कर सकते हैं। बट मैक्स ड्रॉप डाउन आइटम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुई कॉम्बो बॉक्स के लिए, जो कि लिस्ट बॉक्स में नहीं होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस। थैंक यू वेरी मच ऑल।